Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic is factors regulating population size. Population ecology में usually a regulating factor is something that keeps a population at equilibrium. हम regulating factor उस factor को बोलेंगे population ecology में जो population को equilibrium पे रखे. मतलब ये न population ज़्यादा increase हो जाए और न पॉपुलेशन ज़्यादा डिक्रीज हो जाए. जो भी रेगुलेटिंग फैक्टर्स हैं, all the regulating factors, they are density dependent. All the regulating factors are density dependent, meaning that they keep populations at equilibrium by counteracting fluctuations in population size. जो फ्लक्चुएशंस पॉपुलेशन साइज में होती हैं उसको काउंटर करती है. That's why they are density dependent. हमने पिछले 2 लेक्चर्स में 2 ग्रोथ्स पढ़ी. एक हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, that was density independent, and that was very rare, quite impossible in the real world. दूसरा हमने देखा लॉजिस्टिक ग्रोथ. Logistic growth was density dependent. That was the growth that happens in the real world. पॉपुलेशन बढ़ेगी फिर स्टेबल हो जाएगी, कैरिंग कैपेसिटी के नज़दीक आ जाएगी, फिर पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी and we get an S-shaped or sigmoid curve. There are many factors जो आपके सिलेबस में हैं. Some of the factors which may affect the population हम इनको डिस्कस करेंगे. जैसे पहला है, फॉर एग्जांपल हमने बारहा डिस्कस किया है, कंपटीशन. As you know that competition is a type of negative interaction. ये competition जो है ये वो negative interaction है within the biological community जिससे एक या दोनों organism पर इफेक्ट पड़ता है, negative इफेक्ट पड़ता है. And you know organisms compete for resources which are in limited supply, या energy या matter, living space के लिए, specific sites के लिए, लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए. जब एम्पल फूड, वाटर या बाकी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ऑर्गेनिजम्स ग्रो रैपिडली इन नंबर. उनका नंबर बढ़ जाता है, नंबर में, साइज में. But when the food and water availability decreases, when the resources are scarce, then there is competition. The individuals compete with each other. What happens? Usually जो adult population होती है, जो older ones होते हैं, they decline. अब क्या होता है? competition slow down होता है at a point. जब adult population increase होती है फिर population build up होती है. Animals usually compete करते हैं nesting के लिए, feeding sites के लिए, mates के लिए. And you know competition among the members of the same species that we call as intraspecific competition. अगर ये एक ही स्पेशीज के ऑर्गेनिजम्स के दरमियान है हम इसको इंट्रास्पेसिफिक बोलते हैं. अगर ये डिफरेंट स्पेशीज के ऑर्गेनिजम्स के दरमियान है हम इसको इंटरस्पेसिफिक बोलते हैं. And usually competition shapes a species, population and biological community.
by causing individuals and species to shift their focus from one segment of a resource type to another, जिसको हमने पढ़ा था रिसोर्स पार्टीशनिंग, ये बांट के रखते हैं अपने रिसोर्सेस. And this is competition, one factor that regulates the population. There is one more factor, that is weather and climate. Weather and climate. They also regulate the size of population. Usually influence of weather जो है, that is irregular and unpredictable. It usually functions largely by influencing the availability of food. बारिश कब पड़े, कहाँ कहत साली हो, कहाँ धूप ज़्यादा है, कहाँ बारिश ज़्यादा है, कौन से एरियाज ट्रॉपिकल है, कौन से सब ट्रॉपिकल हैं, कौन से टेम्परेट हैं, कौन से पोलर रीजन्स हैं. Usually change in population growth can also be correlated directly with the variations in moisture and temperature. There is one more factor that is known as territory. ये भी हमने पढ़ा है, इससे पहले हमने इसको डिस्कस किया है. That is territory. हमने territorial effect पढ़ा था negative interactions में. And it's also one of the factors which regulates the size of population. ऐसे forces जो individuals को isolate करते हैं. Usually such forces, although they are not so widespread as those favoring aggregation, but they are also important for regulating population. ये isolation क्यों हो जाती है? ये क्यों अपनी टेरिटरी को बांट के रखते हैं बहुत सारे organisms? This is because competition due to short supply of resources. यहाँ भी यही वजह है, resources की supply कम है, या कुछ behavioral response है बड़े animals का, उनका behavior अलग है, कोई powerful ज़्यादा है, या बहुत सारे एनिमल्स जो हैं या ऑर्गेनिज्म्स जो हैं, they usually secrete different chemicals, जिसको हमने एलिलोपैथी पढ़ा था. What happens, isolation में individuals restrict themselves to a definite area. इसी खास एरिया में अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं. इस एरिया को हम बोलते हैं होम रेंज, इस जानवर का, इस ऑर्गेनिज्म का, जहां ये रहता है, इसी के इर्द गिर्द रहता है, इसी एरिया के अंदर रहता है, और इस एरिया को ये डिफेंड करता है, एक्टिवली डिफेंड कर. जैसे मैंने कुत्ते की एग्जांपल उसमें दी थी लास्ट लेक्चर में, कभी हमने जब टेरिटरी पढ़ा था, अगर आप रिकैप करेंगे. इफ दिस एरिया इज एक्टिवली डिफेंडेड so that there is no overlap of space used by individuals, इसी को हम टेरिटरी बोलते हैं फिर. और टेरिटरी इज वेल प्रोनाउंस्ड नेस्ट बिल्डिंग में, एग लेइंग में, एंड केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ यंग में. इससे डेफिनेटली जेनेटिक फिटनेस पे असर पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स अच्छी टेरिटरी हासिल नहीं कर पाते हैं, जो अच्छी टेरिटरी को सिक्योर नहीं कर सकते हैं, दे यूजुअली डू नॉट ब्रीड, उनकी नस्ल ही खत्म हो जाती है फिर. दिस इज टेरिटरी. देयर इज वन मोर फैक्टर, दैट इज प्रेडेशन. दीज आर यूजुअली ऑल इंटरैक्शंस जो हमने पढ़ी थी, वी आर recapitulating all those. This is predation. And you know, all organisms need food to live. Ecologically, predator हम उस organism को बोलते हैं that feeds directly on another living organism, जो सीधा दूसरे living organism पे अटैक करता है, चाहे वो इसको मारे या ना मारे. जैसे हर्बिवोर्स हैं, घास खाने वाले जानवर, वो सीधा जिंदा घास को खाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं. कार्निवोर्स हैं, गोश्त खाने वाले जानवर, या इंसान है. herbivores, carnivores, omnivores which feed on live prey, therefore they are predators.
लेकिन जो स्कैवेंजर्स हैं, डेट्रेटिवोर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, which feed on dead things, they are not predators. I'll repeat, herbivores जो हैं वो जब घास खाते हैं, वो जब लाइव प्रे को अटैक करते हैं, जो ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग मैमल्स हैं जिनको herbivores हम बोलते हैं, उनकी इस प्रैक्टिस को बोलते हैं हर्बिवोरी. Herbivory is a type of predation practiced by grazing and browsing animals या plants, जैसे insectivorous plant है, नेपेंथिस है, ड्रोसेरा है. इंसेक्ट उनके लीफ पे बैठ गया, वो लीफ श्रिंक हो जाता है, इंसेक्ट उसी में मर जाता है. दैट इज ऑल्सो प्रेडेशन, उसको भी हम प्रेडेशन बोलते हैं. एंड हियर अगेन प्रेडेशन जो है इट इंटरैक्ट्स विद कंपैशन, ये भी कंपैशन के साथ इंटरैक्ट करता है. कैसे? जैसे इसको हम बोलेंगे प्रेडेटर मीडिएटेड कंपैशन. क्या हो जाएगा प्रेडेटर मीडिएटेड कंपैशन में? सुपीरियर कंपेटर जो होगा किसी हैबिटेट में, दैट विल बिल्ड अ लार्जर पॉपुलेशन देन इट्स कंपीटिंग स्पीशीज. जो बेचारा कमजोर होगा उसकी पॉपुलेशन तो नहीं बढ़ेगी, जो सुपीरियर होगा, पावरफुल होगा, उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. अब प्रेडेटर्स टेक नोट, वो देखते हैं, एंड दे इंक्रीज द हंटिंग प्रेशर ऑन द सुपीरियर स्पीशीज. फिर सुपीरियर की जो अबंडेंस है वो कम हो जाती है, उससे जो वीक प्रेडेटर है, वीक कंपेटिटर है, उसका साइज बढ़ जाता है, उसका नंबर इंक्रीज हो जाता है. दिस इज हाउ प्रेडेशन हेल्प्स इन रेगुलेटिंग अ पॉपुलेशन. देयर इज वन मोर फैक्टर दैट इज नोन एज पैरासाइटिज्म. इनको हमने इन डिटेल डिस्कस किया है, सारे फैक्टर्स को हमने जब इंटरैक्शंस पढ़ी, इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरैक्शंस. आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं. पैरासाइटिज्म में क्या हो जाएगा, आप समझ लीजिए पैरासाइट्स एंड डिजीजेस है ये. यूजुअली दिस इज अ नॉन म्यूचुअल रिलेशन, ये म्यूचुअल नहीं है, इसमें फायदा नहीं है दोनों का. इट्स अ नॉन म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, where one organism, the parasite जिसको हम बोलते हैं, that benefits at the cost of other, जिसको हम host बोलते हैं. एक होता है parasite, दूसरे को हम बोलते हैं host. And parasites include a broad range of organisms. बहुत सारे viruses हैं, protozoans हैं, fungi हैं, helminths हैं, numerous arthropods हैं. And there exists a close relationship between parasite and host. The growth in the population of one is influenced by the other. अगर पैरासाइट लोड बहुत ज़्यादा होगा, हैवी पैरासाइट लोड, दैट कैन इंक्रीज द मोर्टेलिटी एंड डिक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. उससे पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी. जैसे मिसाल के तौर पर आज हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है. एंड इट इज अ पैरासाइट, अ वायरल पैरासाइट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो गई है वर्ल्ड, लाखों में लोग मर गए. And this is the heavy parasite load. It increases the mortality and decreases the growth rate of population. This is how this also acts as a regulating factor. There is one more factor, that is natural disaster. पांचवा factor जो है, that is natural disasters या disaster. नेचुरल डिजास्टर हम बोलेंगे किसी कैलामिटी को, किसी मुसीबत को, किसी आफत को, that occurs when a hazardous physical event, जैसे वोल्केनिक इरप्शन हो गया, जैसे अल्लाह बचाए अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड आ गया, तूफान आ गया, हरिकेन जिसको बोलते हैं, सैलाब आया,
and this results in extensive damage to property, large number of casualties, property खत्म, लोग मर गए, population damage, plants, animals की एकदम खत्म. And this also is therefore a factor that regulates the population. इससे भी हम देखते हैं कभी कभी ऐसा भूचाल आता है कि लाखों लोग मर जाते, ऐसा सैलाब आता है कि सारी प्रॉपर्टी खत्म, सारे जानवर खत्म, बहुत सारे लोग खत्म. Therefore we can say natural disasters also include snowstorm आता है, सुनामी बोलते हैं, सुनो की सुनामी आती, या अर्थक्वेक से फिर ओशंस में सुनामी आती, स्नो स्टॉर्म्स आते हैं आजकल, या कहत साली होगी, ड्रॉट आ गया, या यही एपिडेमिक, वबा फैली, लोग भूखमरी से मर गए, एपिडेमिक भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं. दिस इज ए नेचुरल डिजास्टर, दिस इज एपिडेमिक, या जो हम आज पेंडेमिक बोलते हैं, फेमाइन, लोग भूखमरी से मर गए फॉर एग्जाम्पल, या मैंने अभी आपको बोला फ्लड, या कभी क्या होता है जंगल में बहुत ज्यादा आग लगती है. अगर आपने देखा होगा 2020 में कई महीनों तक ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में बहुत ज्यादा आग लगी थी, एंड मिलियंस ऑफ ट्रीज, जो भी वहां बायोडाइवर्सिटी सारी की सारी खत्म हो गई. या हेल स्टॉर्म आता है, ओले पड़ते हैं, या बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हीट वेव होती है. तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हैं हम इसको इंक्लूड करेंगे. दे आर ऑल नेचुरल डिजास्टर्स. They act as a regulating, they act as checkers to the population, and they are also density independent. यानी देखते हैं कि डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन की, इसमें 4 ही लोग हैं या 20 लोग हैं या 100 लोग हैं, इनको रखो. नहीं, भूचाल आया चाहे हजारों हूँ, चाहे 10 हूँ, 15 हूँ, 16 हूँ, 100 हूँ, 1000 हूँ, सब के सब खत्म. And they also result in the decrease in population.